Good morning, student. Welcome in your bio class. So today's topic is biotechnology and its application. So in this chapter, you will read how to biotechnology apply in daily life or for human welfare. So before we start biotechnology and its application, again I will instruct you or about COVID-19 behavior. So three things which you have to follow: wear mask. Second one, wash your hand by sanitizer time to time. Third one, avoid always crowded place, and if required, so always wear mask. So there are three instructions which can protect you from COVID-19 and your family also. So follow this rule. So today's topic is बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. इसके पहले के टॉपिक्स में आपने टूल्स पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस क्या है, ठीक है, और वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होना चाहिए. क्लियर. सो अब दिस टाइम वी विल स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स के तौर पे स्टडी करने हैं बायोटेक्नोलॉजी के. तो फर्स्ट वन इज़ it is basically फर्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक्स. जिस जगह पे बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें डायग्नोस्टिक एरिया है, प्रोसेस्ड फूड के फॉर्म पर, वेस्ट ट्रीटमेंट के फॉर्म पर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर के फॉर्म पर, बायो रेमिडिएशंस के फॉर्म पर और एनर्जी प्रोडक्शन के फॉर्म पर. तो बायोटेक्नोलॉजी के जो फील्ड्स हैं वो फॉलोइंग है. फर्स्ट वन इज़ therapeutics. Second one is diagnosis. Third one is genetically modified crop for agriculture. Fourth one, processed food. Fifth one, bioremediants. Sixth one is waste treatment. Seventh one, energy production. ठीक है. So these are three critical research area of biotechnology. फर्स्ट जो इसके रिसर्च एरिया हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट. प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट as improved organisms, usually are microbes or pure enzymes. ये रिसर्च एरिया, क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी के. सेकंड जो एरिया है वो क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस, optimal conditions by engineering for catalyst to act. थर्ड इसकी जो एरिया है बायोटेक्नोलॉजी जहाँ रिसर्च ज़्यादा हो रही है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी to purify the protein
और ऑर्गेनिक कंपाउंड. Clear? So biotechnology applications in biotechnological applications in agriculture. First, food productions can be increased by following way. अब फूड प्रोडक्शन को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? फर्स्ट, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. These are the some method which by help of this method we can increase food production. Second है green revolution succeed in increase food supply. green revolution जो है वो फूड सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं. यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, किस तरीके से? यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस. सो these are the basically some practice we can use in agriculture. Agrochemicals are expensive. agrochemical जो process है agrochemical based agriculture वो यूज़ ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. लाइक एग्रोकेमिकल्स आर एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स in developing countries and also have harmful effects on environment. Therefore, genetically modified crops were developed. Clear? Genetically modified crops क्या होती है? GMO. GMO ये प्लांट्स बैक्टीरिया इसमें कुछ भी हो सकते हैं. GMO are plants, bacteria, fungi, animal whose genes have been altered by manipulations, जिसमें जीन का मैनिपुलेशंस और चेंज किया सकता है. जेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्रॉप हैज़ रिजल्ट. GMO के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? इंक्रीज, इसका फर्स्ट है इंक्रीज टॉलरेंस, increase tolerance against abiotic stress. ठीक है. सेकंड है reduce chemical pesticides. थर्ड, reduced post harvesting losses. increase efficiency of minerals used by plants. ठीक है. नेक्स्ट है enhance nutritional values of food. फूड वैल्यूज़ को इंक्रीज करना. creations of tailors made plants to supply alternative resources such as starch, fuels and pharmaceuticals to industries. So these are the some basically some it is the some importance of GMO. अब GMO के लिए आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं. एक दिया है BT कॉटन, BT कॉटन. इसको BT क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेसिलस थिंगुरेसिस है और कॉटन के प्लांट्स के ऊपर इसका यूज़ हुआ है, इसलिए इसको BT कॉटन कहते हैं. BT मीन्स बेसिलस थिंगुरेसिस. सो इन दिस BT कॉटन प्लांट्स का बेसिकली क्या है? and the some strains of Bacillus thuringiensis produce protein and kill some insect like Lepidopterans, tobacco budworm. ठीक है. और army worm and diphterians, फ्लाइज और मॉस्किटो. कुछ बेसिलस थिंगुरेसिस में कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो कुछ तरीके के प्रोटीन इंसेक्ट्स को मार सकती है. उसमें टोबैको बडवर्म आ गया, आर्मी वर्म आ गया. ठीक है. फिर बीटल्स आ गए और इसके बाद है फ्लाइज और मॉस्किटो. सो कैसे होता है ये प्रोसेस? कैसे होती है? बी थिंगुरेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स विच कंटेन टॉक्सिस इंसेक्टिसाइडल्स प्रोटीन. कुछ ये ऐसे प्रोटीन्स फॉर्म करती है क्रिस्टल्स के फॉर्म पर जो इंसेक्टिसाइडल्स प्रोटीन कहलाती है. टॉक्सिस इंसेक्टिसाइडल्स प्रोटीन मतलब इंसेक्ट के लिए टॉक्सिस इफेक्ट दे रही है. बीटी टॉक्सिस आर इनिशियली इनएक्टिव. जनरली ये क्या होती है? इनएक्टिव होती है और प्रोटोटॉक्सिन की कंडीशन में होती है. बट जब ये जो है इंसेक्ट्स के थ्रू इंजेक्शन इसका हो जाता है और फीडिंग होती है इंसेक्ट्स के थ्रू,
तो ये क्या हो जाता है, जो इनएक्टिव टॉक्सिन है ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसको एक अल्कलाइन पीएच मिल जाता है, एक सही पीएच मिल जाता है गट पर। किसके गट पर? पैथोजेंस के गट पर, लाइक ये जो बड वर्म है ना, और आर्मी वर्म है और बीटल्स हैं, तो इनके गट में उसको पीएच मिल जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो एक्टिवेट हो जाता है और उसका सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल्स, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। अब जैसे ही ये एक्टिवेट टॉक्सिस हुआ, इसने क्या किया, ये उसके गट पर गया, इंसेक्ट के गट पर गया और इंसेक्ट के गट की जो एपिथेलियम सेल्स हैं उसके उसमें पोर क्रिएट करने लगता है, उसमें वो छेद बनाने लगता है, जिससे कि वो सेल्स स्वेलअप होने लगती हैं और वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगते हैं, लाइसिस होने लगता है, सेल लाइसिस होने लगता है और इंसेक्ट जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली एक इसमें रीज़न है, ठीक है। दैट्स अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज बीटी कॉटन। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिस जीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिलस थिंगरेसिस। ये जीन्स बेसिकली कहाँ मिलता है? बेसिलस थिंगरेसिस में, और इसको कई क्रॉप प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कॉटन प्लांट्स में। इसके सैशे मिलते हैं, ड्राई फॉर्म पर होते हैं, इनको कॉटन प्लांट्स पर पोर कर दिया जाता है और जैसे ही कॉटन प्लांट्स पे जाते हैं और कॉटन प्लांट के इंसेक्ट जब जैसे ही इसकी लीव्स को खाते हैं या इस प्लांट्स को इंजेक्शन करते हैं, उसको खाते हैं, फीड करते हैं, तो ये जो इनएक्टिवेटेड जो प्रोटीन है जीन जो बेसिलस थिंगरेसिस में होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक टॉक्सिक सब्सटेंस देता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस उसकी गट की सेल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, हाँ, और वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो दैट्स अ रीज़न बीटी टॉक्सिस। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्लांट्स को उनके पैथोजन से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? द टॉक्सिस इज कोडेड बाय जीन्स कॉल्ड क्राइजीन, और इस टॉक्सिस के लिए एक जीन्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज जीन। जो जीन है, जीन होता है इस उसके लिए, ठीक है ना, इसको स्मॉल सी आर वाई क्राइजीन कहते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरियस टाइप विच, और ये कई टाइप का होता है, प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन्स सी आर वाई आई ए सी, कई टाइप का है, एक है CRYAC और दूसरा है CRY ये AB, CRY तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये जो CRYIAB है ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है बेसिकली। तो बीटी टोबैको वॉज फर्स्ट कल्चर टू किल हॉर्नवॉर्म, और इस तरीके से ये जो वॉर्म्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर वॉर्म्स जो कॉटन वगैरह में होते हैं, उनको किल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये स्पेशली टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जीन इंजीनियरिंग का यूज़ है कि किस तरीके से प्लांट्स को उनके पैथोजन से कंट्रोल किया जा सकता है। एक आता है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्या होता है? जो पेस्ट रेजिस्टेंस, जिनके ऊपर पेस्ट का इफेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए एक नीमेटोड होता है, नीमेटोड है ना। नीमेटोड जो होता है वो हमेशा टोबैको रूट की जो रूट्स होती है, टोबैको प्लांट्स के रूट को मैं अटैक करता है, जिससे कि टोबैको का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जीन इंजीनियरिंग का यूज़ किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और इस टोबैको प्लांट्स को सेव करने के लिए RANI का यूज़ किया जाता है, या RNA इंटरफेरेंस। क्या है वो? RNA इंटरफेरेंस, FERENCE, ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RNA स्मॉल आई। इट इज़ कॉल्ड एज RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस क्या करता है? ये साइलेंसिंग प्रोसेस को रोक देता है। स्पेसिफिक mRNA
बनते समय जो उसमें एक साइलेंसिंग प्रोसेस होती है उसको ये रोक लेता है ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA। ठीक है, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA। DsRNA बाइंड द प्रिवेंट ट्रांसलेशंस ऑफ mRNA, और जो DsRNA है वो mRNA की साइलेंसिंग को रोक लेगा, जिससे कि जब mRNA नहीं फॉर्म होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो इसमें फिर प्रोटीन फॉर्म नहीं होगी। द सोर्स ऑफ DsRNA कुड बी फॉर्म इन इन्फेक्शंस बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम। और ये DS जो RNA है वो बेसिकली क्या है, वो एक उसमें वायरस, इट कुड बी फ्रॉम एक वायरस होता है उससे उसको लिया गया है, जिसमें कि RNA जीनोम है, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं ट्रांसपोजेंस। तो ट्रांसपोजेंस मोबाइल जीन्स हैं। ठीक है, और इसमें सेंस और एंटीसेंस RNA दोनों होते हैं होस्ट सेल में। तो ये दोनों प्रोड्यूस करता है, मतलब RNA इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट कर क्या करता है, डेवलप करता है। तो बेसिकली अब तुमको इतना लर्न करना है कि साइलेंसिंग के प्रोसेस को रोक देता है। जो RNA इंटरफेरेंस है ये साइलेंसिंग के प्रोसेस को रोक देता है, जिससे प्रोटीन फॉर्म नहीं होती है, और प्रोटीन फॉर्म नहीं होती है तो ये निमेटोड्स जो वो है, प्रोटीन फॉर्म नहीं होगी, तो प्रोटीन फॉर्म नहीं होने से जो वो एंजाइम्स है वो, और वो एंजाइम्स जो है डेवलप नहीं होगा। क्लियर? इट्स यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। तो इसके लिए जो वेक्टर यूज़ किया जाता है वो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है। कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, जो कि स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कर देता होस्ट प्लांट में, वो है निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स। निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होस्ट प्लांट में आ गया। अब ये प्रोड्यूस करेगा सेंस और एंटीसेंस RNA, दोनों प्रोड्यूस करेगा, सेंस और एंटीसेंस RNA इन होस्ट सेल। These two RNA are complementary to each other and form a, और ये दोनों मिलकर एक डबल स्टैंडर्ड RNA फॉर्म करेंगे। इट इज कॉल्ड एज DsRNA दैट इनिशिएट RNAi। जो RNAi को या RNA इंटरफेरेंस को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, जिससे कि वो स्पेसिफिक mRNA जो निमेटोड्स के लिए वो है उसके साइलेंसिंग को रोक देगा। ठीक है, द पैरासिटिक कैन नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट, और इस तरीके से पैरासाइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस तरीके से प्लांट जो है पेस्ट से प्रोटेक्ट हो पाएंगे। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। थर्ड है मेडिसिन में इसका क्या यूज़ हो रहा है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है। जो इंसुलिन होती है बेसिकली बेटा, वो उसमें दो चेन होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन A एंड चेन B, और दोनों डाइसल्फाइड्स ब्रिजेस से लिंक होती हैं। ठीक है, तो पहले मैमल्स में जो ये इंसुलिन दी जाती थी, ये स्पेशली किससे निकलती थी, पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग से। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एलर्जी डेवलप हो जाती थी, तो एलर्जी की प्रॉब्लम आने लगी थी, तो ये डिसएडवांटेज था। तो अब उसको दूर करने के लिए प्रोडक्शन किया गया इंसुलिन का। तो प्रोडक्शन इंसुलिन का उसी तरीके से किया RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसमें ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको प्रोड्यूस किया था, वो है इली लिली। कौन है वो? इली लिली, ELI, इली लिली। क्लियर स्टूडेंट? LILL बाय, ये LL बाय, ये इली लिली एक साइंटिस्ट का नेम है। और इली शब्द वर्ड किससे बना है? ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उससे लिया है। ई मीन्स ई और कोलाई का LI लिया हुआ, तो ई लिली, इली लिली, उस तरीके से उसकी नेमिंग की गई है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि दो DNA के सीक्वेंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे DNA के सीक्वेंस जो कि चेन A और चेन B को प्रोड्यूस करते हैं, वो DNA के एक सीक्वेंस ले लिया जाता है, और चेन A और चेन B जो कि बेसिकली इंसुलिन हार्मोन्स का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसको अलग अलग डेवलप कर दिया। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन को। इसके बाद उसको एक प्लाज्मिड्स में डाला, ई कोलाई के प्लाज्मिड्स में, उसके प्रोडक्शन के लिए। जब A और B चेन प्रोड्यूस हो गई,
ठीक है, उनको सेपरेट करके एक्सट्रैक्ट करके और कंबाइंड करेंगे डाइसल्फाइड्स बॉन्ड से, इस तरीके से ह्यूमन इंसुलिन फॉर्म होती है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। डिसएडवांटेज क्या था, जो एक्सट्रैक्ट इंसुलिन जो एनिमल से हो रही थी, इंसुलिन बीइंग अ हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड अ वेरी लिटिल अमाउंट इन द बॉडी। उन लोगों में जिनमें कि हार्मोन्स बहुत कम प्रोड्यूस होता है, तो उनमें लार्ज नंबर ऑफ एनिमल नीड्स टू बी सेक्रीफाइस, तो बहुत सारे एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, थोड़ा सा ही उसमें इंसुलिन बनता था, ठीक है। लेकिन इन दिस वे जो ई लिली ने जिस तरीके से इंसुलिन फॉर्म किया है, एक साथ बहुत सारा इंसुलिन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और स्लॉटिंग, उसमें बहुत सारे एनिमल्स के पेनक्रियास पूरे पूरे ले लिए जाते थे, तो वो इथिकल नहीं था। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे जब एनिमल से इंसुलिन ली जाती थी। लेकिन अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आ गई है, इसमें किसी तरीके के कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कोई भी एनिमल का, और ये इथिकल भी नहीं है। दैट्स अ रीज़न ये बहुत यूज़ हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट, हेयर वी विल फिनिश today's video. So in today's lecture you have discussed some specific area where biotechnology applications is mostly using. First one is for food production, second one green revolution succeed by increasing food supply, third genetically modified organisms. दीज आर द सम वे। यहाँ पे आप लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स भी रीड किए हुए हैं। बीटी कॉटन किस तरीके से वर्क कर रहा है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, थर्ड वन इज हाउ टू गेट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो ये तीनों चैप्टर्स के अक्सर ही इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप उसको प्रिपेयर करोगे। देयर आर ओनली 2 टॉपिक्स और 3 पॉइंट्स आर remain in biotechnology applications that we will finish in next video. Thank you, student. Have a nice day.